Hi Munish, so welcome on Europedia. Uh, Thank you, sir. And Munish, How are you? fine Munish, thanks a lot. And you got selected in a very prestigious job in Himachal Pradesh, जो हर ग्रेजुएट का एक ड्रीम होता है to become assistant engineer in Himachal Pradesh government. So congrats for Yes, that. sir. Thank you, sir. Thank you. So Munish, I'll interact with you and I'll get a lot of information from you, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे इंटरव्यूज के लिए बाद में जाएंगे. So I start with your background. In that, I expect you to tell us about your background, from which place in Himachal. If you are from Himachal, which place in Himachal you are from, and आपका schooling, graduation कैसा रहा? Little bit about your family background. And before you got this job, now what were you doing? Yes, sir. So my name is Sir Munish Kalia, as you know. And sir, I have studied. I'm born and brought up in Palampur, district Kangra, Himachal Pradesh. Sir, I studied in Mount Carmel School in Palampur only until my class 12. It was ICSE board. After that, sir, I've cleared my high secondary in 76% marks in 2014. Yes, sir. After that, sir, I got admitted into National Institute of Technology, Hamirpur, NIT Hamirpur, and there I joined sir, civil engineering. In the year 2019, I graduated from there with a CGPI of 7.13. And during my graduation only, sir, I was placed in two companies, sir. One was Larsen and Toubro, L&T, and one was sir, Coaching Institute, Allen. It was in Kota, Rajasthan. Okay. I preferred to join sir Allen. That time I thought that I would love teaching and I would carry on with this career only. But after teaching there for 1 year, COVID also came, sir, and I thought working in Himachal Pradesh would be better, or maybe in my background even in civil engineering. So I started preparing, and I took some coaching, sir, and 1.5 year of coaching, I started giving exams also. I gave junior engineer, assistant engineer, 3 exams in Himachal Pradesh only I gave of assistant engineer. And this was the last one which I cleared. I did not even clear any junior engineer exam also. अच्छा. So I was, yeah, the cutoffs were close that, 2-3 marks were always remaining. But even I left the hope that, I won't be able to clear this time. So while I was preparing, I also gave my GATE examination, both in civil and environmental engineering. And with the environmental engineering score, I got admitted in masters in IIT Kharagpur while I was waiting for the results. And very less hopeful because even JEE was not even clear. Only assistant engineer exam was pending. So, but luckily I got it, and then I got selected in the month of December 2022. वंडरफुल. अच्छा मुनीश, आप अभी असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में, पीसीएल में. यू कुड नॉट क्लियर जूनियर इंजीनियर एग्जाम. ये लाइफ की बहुत बड़ी टीचिंग है दैट समटाइम you don't get into smaller things but you get a bigger thing, right? So how do you see this entire thing कि जेई में आपकी सिलेक्शन हुई लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर आप बन गए? How do you see this? सर, मैं इस तरह से देखता हूँ कि दोनों एग्जाम सेम ही आते थे, मतलब क्वेश्चन सेम आते थे. थोड़ा सा असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल थोड़ा सा अलग होता था, पर क्या था कि सर तैयारी पूरी नहीं थी ना, तो ना जेई निकलना था ना ए निकलना था. ये तो ये बात है, ये वाला जो असिस्टेंट इंजीनियर वाला एग्जाम हुआ था ना एचपीपीसीएल का, ये सबसे लास्ट में हुआ था, सभी जेई और ए के बाद. तब तक मैं थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर हो गया था, तो मेरी क्लियर हो गया. उस वक्त शायद जेई होता तो वो भी क्लियर होता, पर उससे पहले नहीं होता क्लियर. तो इससे मैसेज क्या जाता है बच्चों के लिए, क्या मैसेज आता है जो तैयारी कर रहे हैं? व्हाट मैसेज गोस? सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप बस तैयारी करते जाओ और एग्जाम दो, बिना ये सोचे कि क्या आने वाला है. अच्छा, हो मैं जाएगा. बहुत से टेक्नोक्रेट्स का इंटरेक्शन करता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स से मैं बात भी करता हूँ. मेरे को ये लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, चाहे वो स्टेट की हैं चाहे वो सेंटर में है, जॉब्स बहुत ज्यादा निकलती हैं. और अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट डेडिकेटली तैयारी पे आ जाए कि मेरे को सब गवर्नमेंट जॉब करनी ही है, तो उसको प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिल्कुल सर, ये आपकी बात में बहुत ज्यादा दम है कि अगर कोई पूरी तैयारी कर लेना, सर सिविल इंजीनियरिंग को एक बार पूरा पढ़ ले, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, 7-8 महीने का वक्त लगेगा. उसके बाद वो सिर्फ रिवीजन करता रहे तो पक्का कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाएगा. ये तो है, गारंटी है इस बात. होता है. पर मेरे ख्याल से एक बी प्लान भी रेडी रखना चाहिए, ताकि बंदा होप ना लूज करे टाइम के साथ साथ. जैसे कि एमटेक कर ली या कुछ भी, मत साथ में वो भी होना चाहिए. ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए तैयारी को. हाँ, मैं अब उसी पॉइंट पे आ रहा था, एमटेक वाले पॉइंट पे, कि जैसे आपने बोला आप तैयारी में लगे, फिर आपने कोचिंग लिया, आप तैयारी करते रहे. अब जो टाइम तैयारी के लिए चाहिए वो तो चाहिए, जो टाइम आपको जॉब के लिए चाहिए वो चाहिए. वो ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मली 2-3 साल स्टूडेंट्स को लग जाते हैं.
उसमें आपने एमटेक कर लिया और एमटेक के साथ साथ फिर आपका एमटेक भी होता चला गया और आपने ये भी कर लिया। मेरे को ये बताओ, बहुत सा बच्चा ऐसा है जो एमटेक बोलता है कि हमें नहीं करना है क्योंकि हमें तैयारी ही करनी है और लगा रहता है, मतलब ज्वाइन नहीं करता। ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए मुनीश के, एमटेक में जाएं कि ना जाएं? क्योंकि गेट तो नॉर्मली बच्चा निकालता है, जो भी आदमी तैयारी कर रहा है वो गेट भी लिख लेता है और निकल जाता है उसका। तो लेकिन ये डिसीजन कि मैं जाऊं कि ना जाऊं एमटेक में, ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए? सर ये डिसीजन बेसिस पे लेना चाहिए ना सर, कि हर किसी के लिए एमटेक नहीं है, ये बात पक्की है सर, हम्म, कि हर कोई एमटेक के लिए नहीं बना होता है, और खासकर आईआईटी में करने के लिए, हाँ, आईआईटी में ज्यादा प्रेशर देते हैं। हम्म, हम्म, तो अगर आपको तैयारी करनी है एमटेक के साथ, तो प्रेफर करना चाहिए कोई लोअर कॉलेज, मतलब एनआईटी टाइप, जिसमें पढ़ाई थोड़ी कम होती कर सकें, है। एक तो तैयारी वो कर है, सकें। लेकिन हाँ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हर किसी के लिए एमटेक नहीं है, हम्म, लेकिन हम्म, हर किसी को फिर नहीं करते रहना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि मतलब कोई और जॉब कर ली कहीं और जाके, मे बी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया, पर मतलब सर वो प्रेशर नहीं बिल्डअप होने देना चाहिए, 1 डेढ़ साल का समय देना चाहिए खुद को, और वो हम्म, डेडिकेशन से देना चाहिए। उसके बाद हम्म, रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, हम्म, साथ में करते हैं। एमटेक नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर हम्म, अगर एमटेक करनी है आपको और आप सिर्फ सोशल स्टिग्मा की वजह से नहीं कर रहे हो, तो फिर वो भी गलत बात है, एमटेक कर लेनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आप बेयर कर सकते हो प्रेशर को, तो हम्म, मेरे ख्याल से एमटेक अच्छा हम्म। ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खूब सारी होती अब इसमें मैं एक दो बात और ऐड करूंगा मुनीश, कि एमटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी ऑप्शन ओपन हो रही हैं आजकल। अभी पिछले साल 2022 में हमने क्या देखा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बहुत सी जॉब्स निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में निकली, हरियाणा पॉलिटेक्निक में निकली। तो बहुत सी टीचिंग की जॉब्स अब एमटेक मांग रही हैं कि अगर आपको टीचिंग में जाना है कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर या पॉलिटेक्निक्स के अंदर, तो एमटेक रिक्वायर्ड है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर की ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हुआ, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग गई उनको होम स्टेट के अंदर। तो दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द एडवांटेज, कि अगर आप ऐसा करके रखते हैं हायर एजुकेशन, उसका एडवांटेज आपको मिलता है। नंबर टू, अगर आपने मास्टर्स किया और कहीं फ्यूचर में आपको हायर एजुकेशन के लिए इवन अब्रॉड जाना है, वो भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है, क्योंकि हम जानते हैं एमटेक के पास स्कॉलरशिप मिलता है, बीटेक के बाद आपको जेब से पैसे खर्चने पड़ते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो यस, एज यू सेड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बताया कि देखो हर किसी के लिए एमटेक नहीं बना, ऐसा भी हो सकता, और खासकर आईआईटी के अंदर प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ना हो कि आप वहां साहब अंदर जाएं और आप दोनों में बैलेंस ही ना कर पाए, तो आपकी ये तैयारी भी गड़बड़ा जाए और वहां पे भी आप कुछ ना कर पाए। तो दैट इज समथिंग विच दे नीड टू कीप इन माइंड। So that is the crux of what you told and what we discussed, Munish. And now I come to है। your interview part, Munish. ये जो आपका इंटरव्यू हुआ था हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, इसका डिटेल में आप हमारे साथ एक्सप्लेन करें कि कितने लोग थे वहां पे, किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे, कितना टाइम आपको लगा वहां पे, एंड सम टिप्स विच यू कैन गिव टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। यस सर, तो सर इंटरव्यू की जो इंटीमेशन थी मेरे को, वो 1 मंथ पहले आई थी कि आपका इंटरव्यू होगा, शिमला में होगा, और कमीशन लेंगे आपका। और इंटरव्यू पैनल के बारे में या इंटरव्यू के कंटेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था सर। तो उसके लिए सर मैंने अपने सीनियर्स को, कॉलेज सीनियर्स को, आपको भी वो थोड़ा, यस। तो सर कॉलेज सीनियर से पूछ के, या जिन्होंने पहले क्लियर किया एग्जाम, उनसे मैंने कंटेंट का पता करा, तो उन्होंने बताया कि देखिए जनरल नॉलेज आएगा हिमाचल का, और जो आपकी आप पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, एमटेक कर रहे हैं आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो उसके सवाल पूछेंगे वो, और जनरल, मतलब जनरल बातें करेंगे आपसे, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी कुछ सवाल वो करेंगे, आपके बैकग्राउंड के ऊपर भी वो कुछ सवाल करेंगे। तो ये सब मेंशन था, और मैंने इन्हीं सब पे ध्यान दिया, क्योंकि सर मैं पावर कॉर्पोरेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो मैं अपने प्रोफेसर से भी मिला जो पावर कॉर्पोरेशन सेक्टर से ही थे। तो उन प्रोफेसर ने मुझे बताया कि वो जो पैनल होगा, अगर उसमें कुछ प्रोफेसर बैठे होंगे, तो वो आपसे ये सवाल भी पूछेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने भी सर बहुत सारी हेल्प की, उन्होंने मुझे कुछ बुक्स मेंशन भी करी, मैंने वो भी पढ़ी। और जनरल नॉलेज के लिए सर मैंने हिमाचल का जनरल नॉलेज की कुछ किताबें होती हैं जो एचएस की तैयारी के लिए होती हैं, उनकी कुछ समरी टाइप मैंने पढ़ ली सर, जो कि काफी हेल्पफुल था, क्योंकि सेम सवाल पे वहाँ पे हुए। अब सर पैनल में क्या हुआ, पैनल में सर एक आईएएस ऑफिसर थे, और सर 2 लोग थे एचपीपीसीएल से। तो जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने सर जनरल नॉलेज के सवाल पूछे, और जॉब के बारे में पूछा कि आप कैसे करोगे जॉब, हैंडल कैसे करोगे प्रेशर, या फिर आपको अगर एमटेक और जॉब, आप क्या करोगे बाद में, एमटेक छोड़ोगे कि नहीं, तो ऐसे सवाल वो पूछ रहे थे। और जो सर एचपीपीसी से लोग थे सर, वो पूरा टेक्निकल सवाल पूछ रहे थे कि अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हो, तो बताइए कि इसमें कौन कौन सी साइंस लगेगी, जैसे हाइड्रोलॉजी लगेगी, तो हाइड्रोलॉजी के ऊपर उन्होंने सवाल पूछे। से ग्राफ्स बनाए, हाइड्रोग्राफ्स बनवाए सर, हाइटोग्राफ्स बनवाए। तो अच्छा, मतलब एक
अच्छा बैकग्राउंड चेक किया सर उन्होंने, पर लेकिन सारे सवाल सिर्फ बीटेक से थे और सिविल इंजीनियरिंग से थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे थे सर। वो पूछ रहे थे कि आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैंने तो कहा सर मैं अभी एग्जाम दे के आया हूँ, क्योंकि मैं सही में एग्जाम दे के आ रहा था। तो मैंने कहा कि सर मेरे को जनरल प्रिपरेशन है, मैंने कोई सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो फिर सर उन्होंने यही पूछना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम्हें क्या आता है। तो मैंने उनको बताया कि सर जैसे हम डिजाइन करते हैं पावर प्लांट को, तो अगर हमें पेन स्टॉक्स डिजाइन करने हैं तो उसमें सर हमें फ्रिक्शन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। या फिर अगर हम डैम को, रिजर्वायर को डिजाइन कर रहे हैं तो फिर हमें कैचमेंट देखना पड़ता है। तो सर वो ये सब डेफिनेशन पूछ रहे थे कि कैचमेंट क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, बताइए फ्रिक्शन किस कारण आती है। डार्सी विशबैक इक्वेशन उन्होंने पूछी सर। फिर वो हेजनविले इक्वेशन पूछ रहे थे सर। और बेसिकली सर वो ये नहीं चाह रहे थे कि मैं बिल्कुल सब कुछ मतलब एज इट इज बोल दूं, लॉजिक से ही पूछ रहे थे वो सवाल। सवाल इजी थे रिलेटिवली, पर टेस्टिंग थे थोड़े, क्योंकि आप गलती नहीं कर सकते थे उन सवालों में, बेसिक थे ना बहुत ज्यादा। तो अगर गलती करते तो वो कहते कि यार ये तो मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो हमें अपना बैकग्राउंड पूरा रिवाइज करके जाना चाहिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। यही है सर। तो मुनीश, ऐसे कोई सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट हो फॉर इंटरव्यू? व्हाट यू शुड स्टडी, व्हिच सब्जेक्ट यू शुड स्टडी? सर क्योंकि ये पावर कॉर्पोरेशन का था तो उससे रिलेटेड हाइड्रोलॉजी थी और पावर ये फ्लूइड मैकेनिक्स था, तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसे कि सर मैंने बात की थी, तो पीडब्ल्यूडी वगैरह होता तो उसमें आरसीसी, स्टील, ये सब इंपॉर्टेंट होता। तो सर जो जिस चीज का इंटरव्यू है उस चीज पे फोकस करके थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए। और बेसिक सब्जेक्ट जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये तो हमेशा रेडी रखने चाहिए। बस यही। तो बहुत से स्टूडेंट ये बोलता है कि सब ये एमटेक अगर आप कर रहे हैं तो एमटेक के सब्जेक्ट्स में से पूछ सकते हैं, एमटेक के प्रोजेक्ट में से पूछ सकते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? एमटेक को उन्होंने पूछा था? हाँ सर, उन्होंने फिर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, उन्होंने बस ये पूछा था कि आप कैसे काम कर रहे हो वहाँ पे, प्रोजेक्ट क्या है आपका, और बस। मुझसे ज्यादा डिटेल भी नहीं गए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको टिकलिश लगा हो, जो आपको लगा हो कि मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता था? नहीं नहीं अच्छा। सर, टेक्निकल में तो सभी सवाल मैंने जवाब दिए, होपफुली मतलब वो दिन अच्छा चला गया मेरा। और वही सवाल सर किसी और दिन शायद मैं जवाब नहीं दे पाता, तो लकीली मैंने प्रिपेयर किए थे तो मैंने वो दे दिए जवाब। हाँ, जनरल नॉलेज के सवाल जैसे कि पूछे थे आईएएस ऑफिसर ने, उन्होंने पूछे थे कि बताइए अभी अर्जुन अवार्ड कौन जीता है हिमाचल में, तो मुझे उनका आंसर नहीं पता था। तो मैंने कहा कि सिर्फ कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा घर जाके कि कौन था, और प्रिपेयर कर लूंगा। और तो ऐसे था, मतलब मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और साथ में हम्बली भी ये भी बोल दिया कि मुझे नहीं आता है। मैंने मतलब उनको कूल नहीं बनाया। अच्छा, इंटरव्यू के लिए मुनीश क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है? अगर आपने किसी को एडवाइस करना हो स्टूडेंट को जो जाए इंटरव्यू के लिए, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? सर ये कि लाइटली ना ले, प्रिपरेशन करके जाए। जो उसको लगता है उसके माइंड में, लोगों से पूछ के, इधर उधर से जान के, सीनियर से पूछ के, पिछले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेके, जो भी चीजें उसको समझ आ रही हैं वो उनकी एक लिस्ट बनाए और उनको ध्यान से पढ़े। बहुत डिटेल में ना जाए, पर एक समरी उसको सब चीजों की पता होना चाहिए। अगर हिमाचल हिस्ट्री है, हिमाचल हिस्ट्री की समरी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री पर ना, उस इलाके की जहां से वो आते हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो एक आधा सब्जेक्ट जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें आपकी कमांड है, अगर वो पूछ लें सवाल कि बताओ तुम क्या प्रिपेयर करके आए हो, तो एक सब्जेक्ट पक्का प्रिपेयर करके जाना चाहिए। प्यार होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा बहुत, किसी एक सब्जेक्ट से थोड़ा सा उनको दिखना चाहिए वो कि बंदा पढ़ता है और इसमें है थोड़ा सा टैलेंट, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा, एक रेपो सी बिल्ड कर देगा, और फिर आगे तो सिर्फ फ्लो में चला जाता है काम। अच्छा मनीष, इसका जो एग्जाम था, रिटन एग्जाम, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, किस तरह का पैटर्न था? बच्चे गेट के बारे में तो जानते हैं, स्टूडेंट्स उनको अवेयरनेस है गेट का पेपर ऐसा होता है। व्हाट अबाउट दिस एग्जाम, रिटन एग्जाम? सर मैंने 3 एग्जाम दिए असिस्टेंट इंजीनियर के। एक पीडब्ल्यूडी वाला था, एक सर ये वाला था, एचपीपीसीएल का था, और एक और था सर, वो था एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो तीनों का एग्जाम सर सेम सेम थे, सेम सिमिलर क्वेश्चंस थे और सेम टाइप क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस क्या थे कि आप आईएएस के प्रीवियस ईयर के, मतलब जो प्रिलिमिनरी होता है ना सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके प्रीवियस ईयर के सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, जो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आता है, लेकिन पीछे के, मतलब 2010 के पहले के, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल नहीं आते हैं। या बाकी जो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी और स्टेट का, उनके जनरल क्वेश्चन वही सा पैटर्न होता है सर, मतलब बेसिक सवाल आते हैं। ऐसे गेट लेवल का नहीं होता है सर, गेट से थोड़ा कम इजी होता है। इवन आप जेई के सवाल भी देख सकते हो, जो हिमाचल के जेई के सवाल होते हैं, काफी आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि सेम सवाल आएंगे, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा जेई से, पर मतलब आपको समझ आएगा कि पैटर्न क्या है। मतलब वो वैसे ही जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं मतलब। और हाँ इसमें मतलब बेसिक। इसमें हिमाचल का जीएस भी आता होगा?
हाँ सर, वो 20 क्वेश्चन आते हैं, वो तो बिल्कुल जेई के यार, जैसे जो जेई में पूछे जाएंगे ना वैसे ही देख लेना, वही एई में आने वाले, और अच्छे सेम क्वेश्चन। आंसर, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। अच्छा मुनीश, अब आपका जैसे जॉब लगा है, आपने काफी अपने सीनियर से बात किया होगा जो पीसीएल में जॉब कर रहे हैं, और एनआईटी एक रेप्यूटेड कॉलेज है हिमाचल में, तो बहुत से सीनियर्स आपके हैं उसमें जॉब में, तो क्या कैसा है ये, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज दिस? हाँ सर, मैंने बात करी है, तो किसी सिविल इंजीनियरिंग वाले से तो नहीं करी मैंने, पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले से करी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक पर्टिकुलर डिवीजन दे दी जाएगी, पर्टिकुलर एरिया, जिसमें कुछ पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, और वहां पे आपको प्रोबेबली कंस्ट्रक्शन देखनी होगी, कि मतलब जो भी मतलब आपको काम दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा, और उनके अंडर आप काम करो। सर मुझे भी क्लैरिटी नहीं है मुझे, पर यही सब मुझे पता है। तो आपको पालमपुर एरिया में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अपना होम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा? यहाँ पे वैसे कोई ना ही कोई अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है इनका पीसीएल वालों का, ना ही पहले से, हम्म, तो कांगड़ा में तो सर मुश्किल लगता है मुझे। पर हाँ, हम्म। चंबा और किन्नौर में ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो पता नहीं सर, पालमपुर में मिल जाए तो बढ़िया ही है। चलो वंडरफुल। सो आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन मोनीश, एंड आई एम रियली थैंकफुल, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट को हेल्प करेगा, जो जो आपने पॉइंट बताए हैं उनको उनकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर योर टाइम मोनीश। आई होप सो, मुझे बहुत अच्छा है सर आपसे बात करके। थैंक यू।